সাহায্য আগবঢ়াই উজ্জীৱিত কৰাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছো এই সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য দাঙি ধৰিলে। মই বিশ্বাস কৰিছো যে আগন্তুক দিনত আমাৰ বৰ্তমান যিসকলে শিক্ষকতা কৰি আছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত আৰু যিসকল মাতৃ পিতৃয়ে পুত্ৰ কন্যাক শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম ভৰ্তি কৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উদগনি দিছে আৰু সমাজৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল যিসকলে সামাজিকভাৱে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত জড়িত হৈ সমাজখনৰ শান্তি অনাৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে। মই সকলো পক্ষকে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আবেদন জনাইছো আপোনালোক সকলোৱে গুৰুজনাৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰিব। গুৰুজনাৰ বিষয়ে যিমান আলোচনা হ'ব সিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শক্তিশালী হ'ব, শক্তি জ্ঞান বুদ্ধি বলৰ অধিকাৰী হ'ব আৰু জীৱনৰ বাটত আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু চৌদিশে শান্তিৰ বাতাবৰণ সম্ভৱ হৈ উঠিব। এই বিশ্বৰ ৭৭০ মানৱ সমাজক যদি শান্তিৰ বাৰ্তা দিব লগা হয় গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে এইটো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰো। গতিকে সেইবাবে মই আজি মহাসভাত সকলোকে আহ্বান জনাইছো, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি এই পবিত্ৰ স্থানত মহাস্থানত আজি পবিত্ৰ বৈকুণ্ঠপুৰী বটদ্ৰৱা স্থানত আমি সমাবেত হৈ আজি গুৰুজনাৰ নামেৰে সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব। আমি জীৱনৰ জীয়াই থকাৰ মুহূৰ্তটো প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিদিনে গুৰুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব লাগিব। কৰিবনে ৰাইজ? কৰিবনে ৰাইজ? জয় গুৰু। শাস্ত্ৰ খুব দুৰ্বল হৈছে। গুৰুজনাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ভক্তিভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰক। ভক্তিত শক্তি আছে, ভক্তিত জ্ঞান আছে, ভক্তিত শান্তি আছে, ভক্তিত আছে সমন্বয় আৰু আনন্দ। জয় গুৰু শংকৰ, জয় গুৰু শংকৰ। আৰু এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আজি দেশৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আমাক যেনেধৰণে উদ্বুদ্ধ কৰিলে তেখেতৰ প্ৰতি আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। मैं आज यहाँ उपस्थित सारे भक्तगणों की तरफ से परम आदरणीय देश की निष्ठावान मजबूत बहादुर नेता गृहमंत्री अमित शाह जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप सबको अपने जगह पर खड़ा होके मेरा साथ आप कहिए अमित शाह जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के भक्ति भावनाओं से क्योंकि एक भक्ति पीठ है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का। गतिके महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर पवित्र भक्ति स्थলত আপোনালোকে উপস্থিত হৈ ভক্তি ভাৱেৰে কওক অমিত শাহ, অমিত শাহ, অমিত শাহ। ধন্যবাদ। সমবেত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি শ্ৰীচৰণত কোটি কোটি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু গুৰুজনালৈ কোটি কোটি প্ৰণাম যাচি তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকৰ এইখন সমাজ সকলো সময়তে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকক, শক্তিশালী হৈ থাকক আৰু বিশ্বৰ মানৱ সমাজক শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰক গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে। এইখিনি কথাকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো। ধন্যবাদ। জয় অসম। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। জয় হিন্দ। तेखर बहुमूल्य वक्तव्य বাবে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। और अब हम आग्रह करते हैं भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस सभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के वित्त एवं
स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री और असम गण परिषद के नेता श्री अतुल बोरा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, हमारे प्रभारी श्रीमान जयंत पांडा जी, श्री केशव महंत जी, श्री कामाख्या त्यासा जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री नाबा डोले जी, श्री राजेंद्र गोहेल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और आज इस पवित्र भूमि पर श्रीमन शंकर देव के प्रति हम सब श्रद्धा व्यक्त करने आए हैं, तब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं नमस्कार करके मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहाँ उपस्थित हूं तब मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि मैं गुजरात, भारत से पश्चिमी क्षेत्र गुजरात से आया हूं। वहां पर भी श्री कृष्ण और वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और अनुयायी, और आज मैं पूरब में छेक आसाम में आया हूं, जहां श्रीमन शंकर देव ने नव वैष्णव परंपरा की स्थापना कर वैष्णव परंपरा को प्राणवान बनाने का काम किया था। उन्हीं के जन्म स्थान पर आज मैं आया हूं। मित्रों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। असम को एक नई भक्ति संस्कृति देने की शुरुआत श्रीमन शंकर देव ने की और माधव देव जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज यहाँ पर दोनों क्षेत्राधिकार उपस्थित है, उनके श्री चरणों में मैं भी प्रणाम कर उनके आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि श्रीमन शंकर देव के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को हम न केवल आसाम, पूरे देश भर के अंदर आगे बढ़ा पाए और उसको लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थान बना पाए। मित्रों, आज यहाँ जब आया हूँ वटद्रवा की ये पवित्र भूमि पर, इस श्रीमन शंकर देव का आविर्भाव भूमि है, जहां श्रीमन शंकर देव ने मानव स्वरूप लेकर न केवल असम, पूरे भारत वर्ष को भक्ति करने का, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का एक नया रास्ता दिया। मित्रों, श्रीमन शंकर देव ने भक्ति आंदोलन को तो खड़ा किया, इसके साथ साथ उन्होंने भारत की एकता के लिए भी कई सारे काम किए। जब श्रीमन शंकर देव का ये वाक्य याद करते हैं तब मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति उनका कितना बड़ा लगाव था। उन्होंने कहा, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार आसे महापुण्य राशि, शीश कदाचित मनुष्य होए भारत वर्ष से आसी। इसका मतलब है कोटि कोटि जन्म तक आप पुण्य करते हैं और महान पुण्य का योग होता है, वे ही कदाचित एक पवित्र भारत वर्ष में जन्म लेने के अधिकारी होते हैं। मित्र, इन्होंने ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को कितनी दूरदृष्टि के साथ भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के वक्त एक बहुत बड़ा वाक्य श्रीमन शंकर देव के लिए कहा, मैं बहुत भाग्यशाली है कि 500 साल पहले यहाँ शंकर देव ने जन्म लिया, जिन्होंने आसामियों का एक ऐसा आदर्श दिया जिसने राम राज्य की कल्पना को पुनर्जीवित किया है। शासन कैसा होना चाहिए, शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासन का उद्देश्य गरीब, दबे, कुचले उनको आगे बढ़ाने का होना चाहिए, राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य आगे बढ़ना चाहिए। और आज मुझे बहुत आनंद है कि इसी बजट में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी के नेतृत्व में
180 करोड़ की लागत से युगों युगों तक श्रीमन शंकर देव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को, कि सालों से स्थान राह देखता था, अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया श्रीमन शंकर देव के विचारों को, उनके बताए रास्ते को, उनके बनाए नव वैष्णव पंथ को एक पुनर्जीवित करे, उसको सम्मान दे और आने वाली सदियों तक पूरी असम और देश को रास्ता बताने का काम करे। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी श्रीमन शंकर देव की भूमि को उन्होंने पुण्य स्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमन शंकर देव को संदेश को आगे बढ़ाने वाला काम किया। मित्रों, ये भूमि जो है वो स्वतंत्र सेनानी बागेश्वरी फुकनोनी, तिलक टेका, लक्कीकांत हजारिका, ठोकरुम सूद, बलराम सूद, कोलाई कोच, होमकांत बरुआ, हेमोरम पटोर, ये सभी लोगों की भूमि जिन्होंने आसाम की अस्मिता के लिए जान दी। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है, जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है। गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं होता। और मित्रों, हमारे अभी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हेमा दास नौगांव से ही है, गायक पापोन भी यहाँ से। ये भूमि ने भारत को बहुत कुछ दिया है। श्रीमन शंकर देव से लेकर गायक पापोन तक ढेर सारे लोगों ने भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। मित्रों, आज श्रीमन शंकर देव और श्री श्री माधव देव, ये दोनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, ये भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये नव वैष्णव आंदोलन के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। और मुझे बहुत गर्व है और अभिमान भी है कि ये काम जब हो रहा है तब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ से नामगढ़ में जाकर श्रीमन शंकर देव के चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने वाला हूँ। मित्रों, श्रीमन शंकर देव ने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज वृत्ति प्रवृत्ति थी, उसको भक्ति के साथ जोड़ने का काम किया और भक्ति आंदोलन से पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। और मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो हम करने जा रहे हैं, ये युगों तक यहाँ पर इसको श्रीमन शंकर देव के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ यहाँ पर नहीं, श्रीमन शंकर देव के जन्म स्थान पर नहीं, आसाम सरकार ने 8000 से ज्यादा नामघरों को जो 50 साल से पुराने हैं उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर ये आंदोलन को नई दिशा बख्शी। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है, मुख्यमंत्री जी और हेमंत बिस्वा शर्मा यही है, ये संख्या 8000 से 25,000 तक कर दीजिए तो सालों तक श्रीमन शंकर देव के विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, जब हम शंकर देव को याद करते हैं तब हम सब ने एक बात याद रखनी चाहिए, जो भारतीय नहीं है वो असमिया नहीं हो सकता। और आज बटद्रवा का विकास का संकल्प जो हो रहा है, इसके अंदर अपने 12 वर्षों के तीर्थाटन से लौटकर महापुरुष शंकर देव जी ने सबसे पहले वैष्णव धर्म का एक शरणम नाम मत की शिक्षा का प्रवचन देना प्रारंभ किया था। यहाँ मणिकूट, कीर्तनगर, चारीहाटी निर्माण भी करवाया। वो जगह वो जो हरड़ वृक्ष है वहां पर ये स्मारक बनने जा रहा है। मित्रों, कीर्तनगर
और कई सारे चीजें हैं। अतिथि गृह बनेगा, कला केंद्र बनेगा, खेलकूद परिसर बनेगा, सभागार बनेगा, यात्रियों को रहने के लिए निवास बनेंगे, एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा, स्वास्थ्य का देखभाल केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनेगी और आकाश गंगा का सौंदर्यीकरण करते हुए संगीतमय फुव्वारा, प्रतिमा और मूर्तियों की स्थापना भी होगी और बहुत बड़ा संचार केंद्र भी बनने वाला है। अपने आप में एक परिपूर्ण स्मारक बनाने का काम हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत की। एक जमाना था कि असम आंदोलन से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था, अलग अलग प्रकार के आंदोलन यहाँ पर खड़े होते थे। आज मोदी जी ने असम का गौरव बढ़ाने के लिए तो जो कुछ कर पड़े वो करा। असम का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा। हमारे सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर असम का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। यहाँ पर तरुण गोगोई जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर उनका भी बड़ा योगदान था। उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। असम की गरिमा, असम की संस्कृति, असम की भाषा, असम का साहित्य और असम का संगीत आगे बढ़े, इसलिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, मगर सबसे बड़ा काम किया असम के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। असम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, असम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, असम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया, असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जो असम हथियार और आंदोलन के लिए जाना जाता था, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ। अभी कल 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, 1000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मेन मुख्य धारा में आए हैं। और मित्रों, मोदी जी ने यहाँ पर 35 बार 5 साल के अंदर 35 बार उत्तर पूर्व का दौरा कर यहाँ की विकास को गति देने का काम किया है। मित्रों, आज चुनाव आने वाला है। कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ती। पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते, मौज मजे करते हैं, जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते। फिर से उन्होंने चालू किया है, चुनाव आया तब। और इस बार चुनाव में तो विशेष बात दिखाई पड़ती है। असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े हुए। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद, बहुत दर्द होता है। उन लोगों ने शुरू किया है जिन पर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई और सैकड़ों आसामी युवाओं को मौत के घाट। क्या समझते हैं? असम की जनता समझती नहीं? क्या उनको ऐसा लगता है कि असम की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? असम की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद मिलकर ही असम को एक विकसित, एक शांत और घुसपैठियों से मुक्त राज्य बना सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। आज इन्होंने भाषा बदली,
मैं उनको पूछना चाहता हूं, आसाम के गौरव की बात करते हैं, आसाम का गौरव गेंडा, आपके शासन में घुसपैठिए गैंडों का शिकार करते थे, आप क्या करते थे? नहीं रोकते थे, क्योंकि वोट बैंक की लालच थी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी जरा जोर से हाँ ना बोलना। अजमल के साथ जो बैठे हैं वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोले, रोक सकते हैं क्या? आसाम के गैंडे को बचा सकते हैं क्या? असम में अंदर चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आओगे और आसाम की सुरक्षा की बात करोगे? आसाम की जनता आपको जानती नहीं है। आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? इस प्रकार की घोर कौमवादी बात करने वाले के साथ कुर्सी के मोह में आप निकले हो। आसाम की जनता आपको जानती है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ काम किया है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, मगर एक काम करना भी बाकी है। हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना, आसाम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती और बाढ़ के कारण लाखों करोड़ों लोग अपना स्थान छोड़कर जाते हैं। यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से पूरे 4 वर्षा का पिक्चराइज किया गया है। ऐसे स्थान ढूंढे गए हैं जहां से पानी को डाइवर्ट कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे। वहां